watching Learning Zoology with Sama. So today we will start about Animal Kingdom. आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम के ऊपर. तो एनिमल किंगडम्स, एनिमल्स विच आर आल्सो नोन एज मेटाजोआ are the multicellular eukaryotic organism that form the biological kingdom Animalia. एनिमल्स क्या है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं. मल्टी मतलब बहुत सारा, मेनी. ओके, सेलुलर मतलब सेल, तो जिसमें कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर. एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म, यू मीन्स गुड एंड कार्योन मीन्स न्यूक्लियस, जिसमें कि गुड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिसमें कि न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, एंड ए ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. सो दीज एनिमल्स form the biological kingdom Animalia. And animals consume organic material, breathe oxygen, and are able to move, can reproduce sexually, and grow from a hollow sphere of cells, the blastula, during embryonic development. Animals organic material consume करता है, that is your carbohydrates, protein, fats, and other vitamins and mineral for their healthy growth of their body. They also breathe oxygen during the process of respiration. They can move, they can reproduce sexually, and can grow from the blastula when they are in embryo stage. So every animal has its unique characteristics. सारे एनिमल्स के अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं. They obtain their energy either by feeding on plants or other animals. There are millions of species which have been identified. Few share similar characteristics while others differ drastically. सारे एनिमल्स के अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. वो प्लांट्स के ऊपर भी फीड करते हैं एंड दूसरे एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं. एनिमल्स में भी हार्बीवरस, जो कि ग्रीन प्लांट्स कंज्यूम करता है, मे बी कार्निवरस विच कैन ईट फ्लेसेस ऑफ एनिमल्स, एंड मे बी ओमनीवरस, both green plants eater and flesh eater animals. हार्बीवर्स भी हो सकता है, कार्निवर्स भी हो सकता है, एंड ओमनीवर्स भी हो सकता है. कुछ एनिमल्स अपना कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एंड कुछ एनिमल्स अपने एक दूसरे से कुछ डिफर रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटाकर. So 5 kingdom classification are of 5 types, that is kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, kingdom Animalia. In this diagram you are seeing that I have given some important characteristics of this 5 kingdom classification. For kingdom Monera, the best example is bacteria. For kingdom Protista, the best example is amoeba. For fungi, that is mushroom. For plantae, that is green plants. And for animalia, that is your lion. Kingdom Monera is the prokaryotic, primitive and unicellular organism. Protista is the eukaryotic, but they are the unicellular, single cell. Kingdom Fungi is the eukaryotic. They may be multicellular. They are the heterotrophs. And Kingdom Plantae is the eukaryotic multicellular organism. They are the autotrophs. Kingdom Animalia is the eukaryotic multicellular, and they are the heterotrophs. In Kingdom Plantae, cell wall is present, but in Kingdom Animalia, cell wall is absent. So these are the main important characters of 5 kingdom classification. Actually, the kingdom Animalia is divided into 2 main group, that is कोड डाटा and नॉन कोड डाटा. कोड डाटा क्या होता है? जिसमें कि बैकबोन प्रेजेंस होता है, द प्रेजेंस ऑफ होलो नर्व कॉर्ड, द प्रेजेंस ऑफ बैकबोन, द प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits. These are the important characters of core data, but in code data these all are lacking. So today we will discuss about the characters of non-code data, that is invertebrates. The animals which lack a notochord are called invertebrates. जिनके नोटोकोड प्रेजेंट नहीं है, जिनके बैकबोन प्रेजेंट नहीं है, उस एनिमल्स को इन्वर्टिब्रेट्स बोला जाता है. जैसे कि एग्जाम्पल में अमोइबा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इंसेक्ट, एंड
I have given here some important characteristics. Number 1, vertebral column is absent. The nerve cord is solid in nature. The nerve cord is present on the ventral side and never on the dorsal side. Alimentary canal is present. It will lie dorsal to the nerve cord. Invertebrate may be a coelomate or pseudocoelomate और ट्रू सिलोमेट. सिलोमेट मतलब जिसका बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. दे आइदर एसिमेट्री और रेडियल सिमेट्री. या तो एसिमेट्री शो करेगा. एसिमेट्री मतलब, सिमेट्री का मतलब होता है जैसे कि एक बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. इफ़ वी विल ब्रेक इट तो आइदर एसिमेट्री शो करेगा, अदरवाइज एसिमेट्री मतलब एब्सेंट ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज रेडियल सिमेट्री, अदरवाइज बाइलेटरल सिमेट्री. The circulatory system is open or closed type and they exhibit all possible type of reproduction. Now the characters of chordata, that is vertebrates. The animal which possess a notochord are called vertebrates. जिस एनिमल्स के नोटोखोड प्रेजेंट है, बैकबोन प्रेजेंट है, उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है. दे मे बी एक्वाटिक, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल. पानी में भी दिखाई देंगे. एरियल मीन्स जो एयर में दिखाई देते हैं एंड टेरेस्ट्रियल मीन मतलब जो लैंड में दिखाई देते हैं. बॉडी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. बायलेटरली सिमेट्रिकल है उनके बॉडी एंड मेटामेरिकली सेगमेंटेड है. मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब जैसे कि एक ट्रेन के, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ ट्रेन. जैसे एक ट्रेन में एक एक कंपार्टमेंट अलग है, सारे कंपार्टमेंट में ईच एंड इक्वल तुमको सीट्स दिखाई देगा, लेटरिन बाथरूम दिखाई देगा. वैसे ही मेटामेरिकली सेगमेंटेड मतलब फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग योर अर्थवर्म, उसके एक एक सेगमेंट में सारे कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट है. देन पोस्ट एनल टेल इज ऑल्सो प्रेजेंट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ. आफ्टर व्हेन इट विल बी एडल्ट इट मे परसिस्ट. एक्जोस्केलेटन प्रेजेंट है, वेल डेवलप है तुम्हारे वर्टिब्रेट्स में. देन बॉडी वाल ट्रिप्लोब्लास्टिक है. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब 3 लेयर दिखाई देगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. देन ट्रू सीलम इज प्रेजेंट एंड ए स्केलेटल रॉड, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट. समटाइम्स इन वर्टिब्रेट्स ए कार्टिलेजिनियस एंड बोनी लिविंग भी हो सकता है. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है विद द डाइजेस्टिव ग्लैंड. ब्लड वास्कुलर सिस्टम क्लोज्ड है. एक्सक्रीटोरी सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है, हैविंग मेटानेफ्रिक किडनी. Sexes are separated. So these all are the characters of chordata. Actually here important characters of chordata are main 4 important chordata characters I have discussed in my early video. Next we will discuss about phylum Porifera. These are the invertebrates. Porifera, these are the very smallest, simplest multicellular animals found mainly in marine habitats. दिस ऑर्गेनिज्म है पोर्स ऑल ओवर द बॉडी. पूरे बॉडी में इनके छोटे छोटे पोर्स रहेंगे, छिद्र रहेंगे. दे हैव ए कैनाल सिस्टम. इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम है ताकि वाटर एंड फूड एनी टाइम सर्कुलेट करता रहे. वाटर, ऑक्सीजन एंड फूड पार्टिकल तो सर्कुलेट करने के लिए ही इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है. द बॉडी डिजाइन सो मिनिमल डिफ्रेंशिएशन एंड डिवीजन ऑफ टिश्यू एंड दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस. जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है स्पॉन्जिला एंड साइकोन. नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम सिलेंट्राटा. हियर दिस ऑर्गेनिज्म शो मोर बॉडी डिफ्रेंशिएशन. दे लिव इन वाटर. इसके बॉडी में सैक लाइक कैविटी है, सिंगल ओपनिंग है इंजेशन एंड इजेशन के लिए. इंजेशन मतलब अंदर जाएगा, इजेशन मतलब बाहर, बॉडी के अंदर से बाहर जाना. दिस एनिमल्स हैव 2 जर्म लेयर. इसको डिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. These animals living solitary or in colonies. या तो solitary मतलब living alone, या तो colony formation करेगा, सबके साथ में रहेगा. Example your jellyfish, sea anemone, hydra. Next phylum is the Platyhelminthes. These are commonly called flatworms. Their body are flattened dorsoventrally. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर दिखाता है. The body is bilaterally symmetrical. राइट पार्ट में जो दिखाई देगा सेम राइट लेफ्ट पार्ट में भी वही दिखाई देगा. फ्लैटवर्म कैन आइदर पैरासिटिक और लिविंग फ्री लिविंग. पैरासिटिक मतलब किसी के भी बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा न्यूट्रिएंट्स के लिए. एंड एग्जांपल्स है प्लानेरिया, लीवर फ्लूक, टेपवर्म. नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम नेमाटोडा. ये बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल है,
ट्रिप्लोब्लास्टिक है, हैविंग 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म। बॉडी सिलिंड्रिकल है, फ्लैटेंड बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी कैविटी में ट्रू सीलम भी प्रेजेंट नहीं है, दैट्स वाई सीडोसीलम बोला जाता है। नेक्स्ट, दिस ऑर्गेनिज्म शो ए कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल विच इज स्ट्रेट। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल पूरा स्ट्रेट है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, आस्कारिस, वाउकेरिया। नेक्स्ट फाइलम इज द एनेलिडा। एनेलिडा आर फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट सच एज लैंड, फ्रेश वाटर, इवन मेराइन वाटर also. They have also bilaterally symmetrical body having 3 germ layer, that is triploblastic, and they have a true body cavity. Body is also segmented with some organ differentiation. And here the best example is the earthworm, leeches. The next phylum is the phylum Arthropoda. They make up the largest group in the animal kingdom. This is the largest phylum. Most of the insects are included in this phylum. आर्थ्रोपोडा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जॉइंटेड लेग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, स्पाइडर, मस्कीटो, क्रैब। नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम मोलुस्का। यहाँ पर भी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, एंड मोलुस्कन कुछ डाइवर्स ग्रुप में दिखाई देते हैं। दे फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। दिस एनिमल कैन बी सीन एक्वाटिक हैबिटेट। दे कैन बी आइदर मेराइन और फ्रेश वाटर। मेराइन मतलब सॉल्ट वाटर में भी दिखाई देंगे, एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी दिखाई देगा। फ्रेश वाटर मतलब द वाटर विच वी आर यूजिंग फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज एंड आवर डेली यूज पर्पज। द बॉडी डज नॉट शो सच सेगमेंटेशन। यहाँ सेगमेंटेशन नहीं है बिल्कुल भी। सिलोमिक कैविटी भी रिड्यूस्ड है। एग्जाम्पल ऑक्टोपस। नेक्स्ट फाइलम इज द फाइलम इखिनोडर्माटा। Echinoderms are animal with spiny skin. They are marine habitat. They are free living animals. यहाँ पर लार्वा फॉर्मेशन होता है। These animals are triploblastic, have a coelomic cavity, and the best example is starfish, sea cucumber, sea urchin. नेक्स्ट फाइलम है हमारा प्रोटोकोर्डाटा। एक्चुअली मैंने पहले इसमें डिस्कस कर दिया था, पहले मेरे जो वीडियो है उसमें मैंने बता दिया है सारे फाइलम्स के बारे में, डिवीज़न के बारे में। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लेके आई हूँ। नेक्स्ट है हमारा फाइलम प्रोटोकोर्डाटा। द प्रोटोकोर्डेट एनिमल्स आर बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ पर सीलम दिखाई देता है, न्यू बॉडी फीचर्स दिखाई देता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड है ड्यूरिंग सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट ये कोडेट्स के कुछ कैरेक्टर शो करता है। एग्जाम्पल्स है तुम्हारा हार्डमानिया एंड बेलानोग्लोसस। यहाँ से हमारा कोड डाटा शुरू हो गया। नेक्स्ट है फाइलम वर्टिब्राटा, जो कि दिस आर द एडवांस ग्रुप ऑफ एनिमल शोइंग रियली एडवांस फीचर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स यहाँ पर दिखाई देंगे। नोटोकोड, डोर्सल नर्व कोड, पोस्ट एनल टेल, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। एंड फाइलम वर्टिब्राटा 5 क्लास में डिवाइड हो गया, दैट इज पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मामलिया। तो फर्स्ट क्लास है हमारा पाइसेस। ये टोटली एक्वाटिक एनिमल है विच इज कॉमनली कॉल्ड एज फिश। देयर स्किन इज कवर्ड बाय स्केली प्लेट्स, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, मस्कुलर टेल प्रेजेंट है विच हेल्प इन द मूवमेंट, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू से होता है। हार्ट यहाँ पर 2 चेम्बर है, राइट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एग्जाम्पल से रोहू, इलेक्ट्रिक रे एंड अदर्स। नेक्स्ट है हमारा क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है बच्चों जो कि पानी में भी दिखाई देता है और लैंड में भी दिखाई देता है। द एम्फीबियंस कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। दे हैव म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन। द हार्ट इज 3 चेम्बर। यहाँ पर हार्ट 3 चेम्बर है। रेस्पिरेशन गिल्स एंड लंग्स के द्वारा होता है। दे आर एग लेइंग एनिमल्स। उनके बॉडी में 2 पार्ट्स में डिस्टिंक्ट हो गया, हेड एंड ट्रंक। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टॉड्स एंड सैलमंडर। सो नेक्स्ट क्लास इज द क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। दे ब्रेथ थ्रू लंग्स, लंग्स के द्वारा ब्रेथ करते हैं। हार्ट 3 चेम्बर है। एक एक्सेप्शन है तुम्हारा क्रोकोडाइल जिसका 4 चेम्बर हार्ट है। एग्जाम्पल है स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा। द नेक्स्ट क्लास इज द क्लास एप्स। They are warm-blooded animals. Their body is totally covered with feathers.
They have four limbs which are modified into wings. They have a four-chamber heart. They breathe through lungs. They lay eggs. All birds are classified under the examples है तुम्हारा parrot, crow and ostrich. Next, mammalia. Mammals are the warm-blooded with a four-chambered heart. Actually, mama word जो है that means breast. Okay, so this mama means breast. So they are the mammalia. In mammalia class, they are the breastfeeding animals. They have mammary glands. Their skin has sweat and oil glands also. They give birth to directly young ones. Respiration occurs through lungs. Examples are the human beings, gorilla, cow. So here I have given some picture of your animal kingdom.